Hello and good evening, everyone. So, we are glad to welcome you to this 10 days free TCS NQT preparatory course arranged by Profound EduTech. Yes, so guys, as we announced earlier, we are launching or we are offering this 10 days free preparatory course to prepare you for TCS NQT, which is coming up on 18th and 19th February. And we are going to start the training sessions from today. I hope and I'm sure that you are really excited to learn all the aptitude and reasoning and verbal ability concepts and appear for the TCS NQT test. But before going ahead, I will quickly take you through a small presentation and then I will hand over the session to our senior trainer, Miss Girija ma'am, who will take the sessions for you. So this is an overview about Profound EduTech. Profound EduTech, we are basically a top IT training and placement company. We have 5 training centers in Pune, 3 in Mumbai, and 1 in Nasik. So we have 9 training centers across Maharashtra where we train the freshers in various job-oriented diploma courses, IT diploma courses, and along with quality trainings, we are well known for strong placement support as well, as we have placed more than 5,500 freshers in last 6 years or so in various IT companies. Yes, as I mentioned, we are known for quality trainings, and such quality trainings are possible because of the kind of trainers that we have. All the trainers that we have, they are highly qualified and experienced. We have class of art infrastructure at all our centers. Now, all our centers, they are well equipped with classrooms, computer labs. In the labs also, we have lab trainers who guide the students in the assignments, etc. And yes, as I mentioned, we are strong in placement support as well. We have placed more than 5,500 freshers, and we offer daily exclusive campus drives to the students who take such diploma courses, job-oriented diploma courses at Profound EduTech. And we have a connect with 3,000 plus clients for placements. These are some of the reasons why the students they prefer to enroll for a course at Profound EduTech. The first and foremost reason is live trainings. Yes, all the trainings that we conduct, whether online trainings or offline trainings, they all are live trainings, meaning that they are not pre-recorded trainings. They are live trainings, and since these are live trainings, a lot of interaction becomes possible between the students and the trainers, and which helps the students to get all their doubts, queries, questions cleared immediately. Next, yes, we follow hands-on approach. We give a lot of importance to the practical knowledge, and ultimately, that is what is expected in the IT industry as well. So we have daily assignments for our students, which they complete in the labs. Whatever they learn, they implement it on real-world projects. So this is how we give a lot of importance to practical knowledge. Next, we cover multiple technologies and programming languages in the same course. Yes, if you talk about our full stack developer course, we cover fundamentals, backend, front end, testing, the server side JS, NoSQL database, and Python, everything within the same course, which helps the students to get skilled on multiple languages and also to explore placement opportunities which are specific to those skills. And yes, ultimately, we offer 100% guaranteed placement support to all our trained freshers. These are various levels of services that we offer. We offer individual courses at our training centers, as I mentioned earlier, in the form of job-oriented diploma courses, as well as some short-term IT courses with guaranteed placement support. Then we also offer corporate trainings to the IT companies in the form of customized trainings and workshops. To the colleges also, we offer validated trainings in technologies. Then we also offer campus recruitment trainings, assessment, placement support, and all. This is a snapshot of our full stack Java developer course. This is a similar course in software testing. You may visit our website www.profoundeducate.com, where you will find all the details, all the contents of our courses. These are various technologies we train in, right from basics like C, C++, Java to then .NET, software testing, Python, data science, AI, ML, full stack, min stack, everything we cover in our courses. As I mentioned, we are strong in placement support. This is a partial list of the clients which recruit freshers from us. Name any MNC right from
Accenture, Amdocs, Capgemini, Zensars, Intel, Deloitte, ADP, Tech Mahindra. They all have recruited freshers from us. And apart from these big names, we have several other MNCs as well as domestic companies. Yes, so as you know that you have joined this session to learn about TCS NQT, to prepare about TCS NQT, which is scheduled in February 2021. So these are the details. So one TCS NQT was already conducted for in October 2020. Okay, but that time it was for limited students, limited in the sense there was a criteria with 60% and 2021 batch only and all. Okay, but now TCS NQT has announced, TCS has again announced the TCS NQT in February 2021 once again, and this time they are going to conduct this test for a variety of students. So as far as eligibility is concerned, any graduate or postgraduate from any stream is eligible to apply for TCS NQT. Yes, you heard it right. Any graduate from any stream who is passed out from 2022, or rather who is going to pass out from 2022 batch or 2021 batch, or who is passed out from 2020 or 2019 or even earlier batch, can apply for this. And most importantly, there is no percentage criteria. Okay, so a wide variety of students will be eligible to apply for this TCS NQT. And as far as passed out candidates are concerned, the only restriction is that they should not have more than 2 years of experience. So this is the eligibility criteria. The last date to apply is 10th February 2021, and the test will be on 18th and 19th February 2021. So the highlights, the most important highlights is that the candidates who will appear TCS NQT in February 2021 and who will have a TCS NQT score will be eligible to apply for jobs not only in TCS but also with other companies on the TCS Ion job listing portal, which they are coming up with soon. Okay, so even other companies, they are going to endorse the TCS NQT score for their recruitment. So this is the biggest highlight of TCS NQT, which is going to be conducted in February 2021. So this is the TCS NQT test pattern. The sections are going to be reasoning, aptitude, that is numerical ability, and verbal ability. The number of questions on the reasoning will be 30, and 50 minutes will be the duration for that particular section. As far as numerical ability is concerned, 26 questions will be there and 40 minutes duration. And there will be 24 questions on verbal ability, and the time is 30 minutes. So in all, the test is going to be of 2 hours duration, which you are going to appear at TCS Ion Center if you have registered and if you are shortlisted. And the total number of questions is going to be 80. So these are the tentative topics for TCS NQT: verbal ability, then numerical ability, reasoning ability, and their topics. All the typical topics that you will find in any of these sections are included in TCS NQT. So these are some of the details about online preparatory course that we are offering to you for next 10 days starting from today. So start date is 6th February and it will be till 15th February. It will be for approximately 10 days and 2 hours every day from 6 p.m. to 8 p.m. here itself on our YouTube channel. So do subscribe to our YouTube channel if you have not subscribed yet, and also click on the bell icon to get notified every time instantly. And yes, of course, please refer your friends also to get benefited through this training program. So thank you so much for viewing this video, watching this video. I know you are curious to learn about the topics now, and we have our senior trainer, Ms. Girija Madam, who will take this session for you. And I now request Girija Madam to please carry on with her part. Thank you so much. Yes, good evening everyone, and thank you so much, Neeraj sir, for the brief information about
the course and all the registration process. Thanks a lot. Now, yes, I know you people are very eager to learn aptitude, and yes, without wasting a single moment, हम लोग जल्द से जल्द start करने जा रहे हैं. So now here, just wait a moment until the time. Please be ready with pen and paper so that you can try some points, some questions, some numericals by your own, as well as you can make a note of some important points. Okay. So I think I have started my presentation and the presentation is properly visible to you all. Now what we are going to learn in our first session, some concept about percentages, some part for ratio and proportion, and some questions on ages. Of course, question तो हम discuss करने ही वाले हैं. And now let's begin with the percentages. Now percentages, बहुत दिन से हम ये वर्ड सुनते आ रहे हैं. हमने परसेंटेजेस बहुत बार कैलकुलेट भी किए हैं. कब कब कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज? एक तो पक्का है, हम जहाँ पे हमें मार्क्स फाइंड करने हैं वहां पे हम परसेंटेजेस कैलकुलेट करते हैं. Now, what's the exact meaning of percentage? Look at this word. Just इसको थोड़ा break करेंगे. Per and cent. Per means for each and cent means 100. हम numbers को कैसे express करने जा रहे हैं? We are going to express the numbers in the forms of hundreds. अब यहाँ पे क्यों हमें 100 की forms में express करना है? अब देखो यहाँ पे आप जितने भी स्टूडेंट लॉग इन हुए हो, आप सभी का यूनिवर्सिटी अलग है, आप सभी के कॉलेजेस अलग है, आप सभी के कॉलेजेस का मार्किंग स्कीम अलग है. किसी का एकेडमिक ईयर, मे बी उनके एकेडमिक ईयर में ओनली 6 सब्जेक्ट रहेगी, मे बी वो सेमेस्टर वाइज कैलकुलेट करेगी, कुछ कुछ जगह पे ईयर वाइज कैलकुलेशन किया जाएगा. सो ऑल दिस गोज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डिसाइड और टू अरेंज द स्टूडेंट इन अ ऑर्डर. अब देखो एक स्टूडेंट मेरे पास आया और कहने लगा कि मैम आई हैव सिक्योर्ड 420 मार्क्स आउट ऑफ 600. Okay, I said that's cool, that's really fine. Now another student also came to me and said, ma'am, I have secured 420 marks and my marks were out of 700. I said that's completely okay. But if I check at these two students, it is really difficult for me to arrange them in a particular order. Who comes first, who comes next, ये difficult जाएगा. So at this moment, what I will do, I will calculate their percentage. And how to calculate percentage? I will simply multiply this by 100. Right? Simply we will multiply both the values by 100. Now this 0 gets cancelled. Again this 0 gets cancelled. 6 sevens are 42. This is 0. So this person got 70%. Percent. Percent का meaning क्या है? This student secured 70 marks out of 100. Now look at this student. ये second student. ये zeros cancel हो जाएगी. Right? 7 6 are 42 and this is 0. So this student secured 60%. Percent means what? Per 100. Now look at this. मैंने दोनों को सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाया. फर्स्ट स्टूडेंट 70 आउट ऑफ 100, सेकंड स्टूडेंट 60 आउट ऑफ 100. अब मे बी वहां पे एक आध और स्टूडेंट रहेगा जिसके अकेडमिक में ईयर वाइज कैलकुलेशन होगा. लेट्स से उनके मार्क आउट ऑफ 1200 है. आउट ऑफ 1200 लेट्स से द पर्सन हैज सिक्योर्ड 600 मार्क्स. तो इसके परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेगी? सेम वे में into 100 multiply कर लो 100 से, 0 will get cancelled, 12 5s are 60 and this 0 as it is. So this student has secured 50%. It means what? 50 upon 100. Now look at this mark. Total mark यहाँ पे 600 है, यहाँ पे total mark 700 है, यहाँ पे total mark 1200 है. Let the total marks be different. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. But the moment we convert them in percentage, see how it easy becomes. कितना इजी हो गया देखो. हमें इमीडिएटली पता चला आउट ऑफ 100 70 मार्क, आउट ऑफ 100 60 मार्क, आउट ऑफ 100 50 मार्क. सो आई कैन से दिस स्टूडेंट सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक, आई कैन से दिस स्टूडेंट सिक्योर्ड सेकंड रैंक एंड आई कैन से दिस स्टूडेंट सिक्योर्ड थर्ड रैंक. तो जैसे ही हमने इसको सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाया हमें कंपैरिजन करना आसान हो गया. सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ परसेंटेज, जहां पे हम डेटा को सिंगल प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं. Now look at this first student. He secured 70% marks, right? Out of 100, maximum ये student कितने marks स्कोर कर सकता है? 100 स्कोर कर सकता है. उसने 70% स्कोर किए, इसका मतलब क्या है? Simply 30% मार्क वो स्कोर नहीं कर पाया. मे बी उसके क्वेश्चंस गलत हो गए या कुछ और रीजन हो सकता है, राइट? ये 30% मार्क वो स्कोर नहीं कर पाया. Look at the second student.
उसने 60% स्कोर किए हैं, व्हाट इट इंडिकेट्स आउट ऑफ 100 60। अगेन ये स्टूडेंट भी मैक्सिमम कितने मार्क्स स्कोर कर पाएगा, 100 मार्क्स स्कोर कर पाएगा, राइट। 100 के बियॉन्ड जा सकते हैं क्या, नहीं, 100 के बियॉन्ड नहीं जा सकते। सो इफ यू सी हियर उसने 60% मार्क्स स्कोर किए हैं, तो 40% मार्क डेफिनेटली उसके डिडक्ट हुए हैं, उसने वहां पे कुछ ना कुछ छोटी सी गलती की है। लुक एट दिस थर्ड स्टूडेंट, 50% मार्क उसने स्कोर किए हैं, व्हाट इट क्लियरली इंडिकेट्स वो 50% मार्क स्कोर नहीं कर पाया, उसके आंसर रॉन्ग हो गए होंगे। नाउ always remember everyone, in percentages maximum is 100%. We can't go more than 100%. I will give you one example. Let's say for my aptitude course 50 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है। कितने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है, 50 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, ओके। एंड आउट ऑफ 50 आई कुड सी दैट all are present, सभी लोग आ गए मेरे क्लास में। So can I say the present percent for my class is 100%, right? क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं मेरे क्लास में 100% स्टूडेंट प्रेजेंट है, डेफिनेटली कह सकते हैं। लेट्स से सम अदर क्लास इज गोइंग ऑन जिसमें 100 स्टूडेंट ने एनरोल किया था, एंड आउट ऑफ दिस 100 स्टूडेंट आ गए क्लास में, सभी लोग प्रेजेंट है। तो कैन आई सी अगेन द प्रेजेंट परसेंट इज 100%, डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं। अब ऐसा सीन कभी आएगा क्या कि 50 स्टूडेंट ने एनरोल किया है एंड आउट ऑफ विच 62 स्टूडेंट प्रेजेंट है, नो, दिस सीन विल नेवर कम, ऐसा सीन कभी नहीं आ सकता। तो मैक्सिमम परसेंटेज विल बी 100% एंड वॉट एवर द डेटा इज देयर, इसके ऊपर हम नहीं जा सकते। और क्या क्या हो सकता है, मार्क्स में भी सेम सीन रहेगा। सेम एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया, ये जो स्टूडेंट है 600 में से कितने मार्क्स स्कोर कर पाएगा, 600, उसके ऊपर जा सकता है क्या, नहीं, वो उसके ऊपर नहीं जा सकता। लेट्स से वोटिंग चल रहा है, आप सभी को वोटिंग पता होगा, इलेक्शन। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन देयर इज वन टाउन जिसका पॉपुलेशन है 5000। क्या पॉपुलेशन है उस टाउन का, स्मॉल टाउन है एक, एंड द पॉपुलेशन फॉर इट इज 5000। मैक्सिमम कितने लोग वोट कर पाएंगे, मैक्सिमम 5000 पीपल कैन वोट। ऐसा होगा क्या कि 5000 पीपल वर देयर एंड आउट ऑफ विच 6000 पीपल ने वोट किया है, नो, दिस विल नेवर हैपन। जितने लोग हैं उतना ही मैक्सिमम नंबर आपको दिखाई देगा। तो मैक्सिमम टोटल क्या होता है, हमेशा 100% होता है। चलिए अभी इसी के ऊपर हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आई होप द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेजेस इज क्लियर टू यू। नाउ लुक एट सम क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, अ टीम लॉस्ट 25% of the matches it played. If it won 15 matches, find the total number of matches it played. ठीक है, आगे देखो, हमें पता नहीं है टीम ने कितने मैचेस खेले हैं, बट जितने भी मैचेस उन्होंने खेले होंगे, ऑफ कोर्स उसी में से उन्होंने कुछ मैचेस जीते हैं, उसी में से उन्होंने कुछ मैचेस हारे हैं। आर यू गेटिंग दिस कंसेप्ट? तो अगेन यहाँ पे हमारा मैक्सिमम काउंट क्या रहने वाला है, इट विल बी 100%। नाउ लुक एट दिस परसेंटेज, a team lost 25% of the matches it played. ओके, 25% उन्होंने लॉस की है, वो हारे हैं। तो कैन वी से दे हैव वन 75%, कह सकते हैं क्या, बिकॉज मैक्सिमम 100 के ऊपर जाएगा क्या, नहीं जा सकता। लेट्स से उन्होंने 100 मैचेस खेले हैं, टोटल 100 मैचेस, 100 में से लेट्स से वो यक्स मैचेस जीतेंगे एंड 100 माइनस यक्स मैचेस वो हार सकते हैं। हमें वही तो कैलकुलेट करना है, बट ये हमें यहाँ पे क्या किया है, परसेंटेज में दिया है। 25% मैचेस उन्होंने हारे हैं, तो क्वाइट ऑब्वियस है दे हैव वन 75% ऑफ द मैचेस। नाउ लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट, इफ इट वॉन 15 मैचेस फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इट प्लेड। अब हमें एक काउंट दिया है, उन्होंने कितने मैचेस जीते हैं, दे हैव वन 15 मैचेस। तो कैन आई से दिस विनिंग परसेंटेज मस्ट बी इक्वल टू 15? क्या हम कह सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। 75% is equivalent to 15 and thus we have to calculate 100%. 75% is 15, 100% is equal to what? Now we have to do cross multiplication over here. क्या हो जाएगा, 100 into 15 divided by 75. Let's divide this. 15 ones are 15, 15 fives are 75. 5 twos are 10 and this is 0. So how many matches they have played?
they have played 20 matches. 100% indicates total maximum. 25% matches they have lost, that they have won 75% of matches. We know the winning count. Winning का count हमें पता है 15 matches उन्होंने जीते हैं. 75% is equivalent to 50 and we are going to calculate 100%. 100% gives us total and after performing the calculation we have got 100% is nothing but 20. Okay. Now look at the second question. In a class of 500 students, 40% are girls. Find the number of boys and ratio of number of girls to number of boys. ठीक है, फाइंड करेंगे. चलो कितने स्टूडेंट है हमारी क्लास में टोटल? 500 स्टूडेंट है. आउट ऑफ विच गर्ल्स का परसेंटेज कितना है? गर्ल्स का परसेंटेज 40% है. ऑफ कोर्स यहाँ पे डेटा 100% के बियॉन्ड जा सकता है क्या? नहीं जा सकता. ऐसा सीन कभी आएगा क्या कि मेरे क्लास में 300 गर्ल्स है एंड 300 बॉयज है? नहीं, उस वक्त मेरा टोटल क्या हो जाएगा? द टोटल विल बी 600. हमें टोटल 500 रखना है. सो इफ 40% आर गर्ल्स, कैन वी से 60% आर बॉयज, राइट? और हमें यही फाइंड आउट करना है. अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्ट्रेट अवे इस 500 का हम 60% कैलकुलेट करेंगे, राइट? दिस विल गिव अस नंबर ऑफ बॉयज. जस्ट कैंसल आउट दिस जीरो, अगेन कैंसल आउट दिस जीरो. 5 into 6 कितना आता है? 30 and this zero as it is. So how many boys were there in that class? 300 boys were there. Now don't waste your time in calculating 40% of 500. क्यों? Because अभी 300 boys हमें मिल गया ना count. What will be the number of girls? You people know total student are 500, right? You just subtract number of boys. So what's the remaining count? Remaining count is 200. तो girls कितने रहेंगे उस क्लास में? 200 रहेंगे. Now we got number of boys. They asked us to calculate ratio of number of girls to number of boys. Girls कितने हैं उस क्लास में? 200. Boys कितने हैं? 300. So what will be the ratio of girls to boys? It is 2/3. ओके, यस. चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहां पे क्या है. ना Victor gets 92% mark in examination. If he got 460 marks, find the maximum mark. Now look at this percentage. उसने कितने परसेंट सिक्योर किए हैं? 92% सिक्योर किए हैं. He got 460 mark. हमें उसका परसेंटेज भी दिया है, हमें उसके मार्क्स भी दिए हैं. तो कैन वी से his percentage and these marks even they must be equivalent, क्योंकि एक ही तो एग्जाम की बात चल रही ना, अलग अलग एग्जाम की बात चल रही क्या? They are talking about same exam. So what will be? What it will be? 92% will be equivalent to 460. Now what are the maximum mark? Maximum marks क्या रहेंगे? Maximum marks will be of course 100% and वही तो हमें पूछा गया है. We have to calculate 100%. How to calculate this? Just we have to do cross multiplication. Let's do the cross multiplication. 100 into 460 divided by 92. Now we have to simplify this. If you little look at this number 46 and make the double of this, okay? कितना आएगा? 2 6 are 12, carry 1, 2 4 are 8 and 1 9. 46 का exact double है 92. So can we straight away cancel this? Definitely. 46 ones are 46, 0 as it is, and 46 twos are 92. Divide by 2, 2 5s are 10, and 5 into 100, it will be what? 500. So, what are the maximum marks for the examination? विक्टर जिस एग्जाम में अपीयर हुआ है उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? उसके मैक्सिमम मार्क्स 500 है. ओके. इन अ पब्लिक शो 75% of seats were filled. If there were 600 seats in the hall, find the number of vacant seats. क्या दिया गया है? एक पब्लिक शो में 75% सीट्स ऑक्यूपाइड है. फील्ड का मीनिंग क्या है? ऑक्यूपाइड बाय समवन, उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है. Okay. Now there were total 600 seats in the hall, right? So we have to find vacant seat. That's fine. Now look at this percentage. 75% seats were occupied by someone, right? अब टोटल यहाँ पे क्या रहेगा? टोटल जो भी चेयर्स है उसमें ही कुछ सीट ऑक्यूपाइड रहेगी एंड उसमें से ही कुछ सीट वैकेंट रहेगी.
तो कैन आई से अगेन यहाँ पे जो डेटा है इट विल बी मैक्सिमम 100%, सेम रहेगा, राइट? सो इफ द 75% ऑफ सीट्स वर ऑक्युपाइड, हाउ मेनी सीट्स वर वैकेंट इन परसेंटेज? अगेन इट विल बी 25%। ये माइनस कर दो परसेंटेज, तो कितनी सीट्स वैकेंट है? 25% ऑफ द सीट्स वैकेंट है। ओके, नाउ देयर वर टोटल 600 सीट्स, राइट? हमें क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट वैकेंट नंबर ऑफ सीट। तो स्ट्रेट अवे हम लोग क्या करेंगे? 600 का 25% कैलकुलेट करेंगे। So let's calculate 25% for 600. This zero were cancelled, this zero were cancelled, and 25 6 are how much? It is 150. तो उस particular hall में कितनी seats vacant है? There were 150 seats vacant. Okay, just wait for a moment. There is little disturbance on my side. Just wait for a moment. Yeah. Okay. So I'll quickly repeat both the questions. What we did, there was little disturbance, so उसकी वजह से मैंने mute किया था. Okay. Now look here. Victor gets 92% marks in examination. They have given. What we did over here, 92% is equivalent to 460, and we have to calculate maximum mark. Maximum means how much? Maximum is 100%. We have to calculate 100%. So we did a cross multiplication over here, 100 into 460 divided by 92, and thus we calculated, we got the final answer as 500. तो उस पर्टिकुलर एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? पर्टिकुलर एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स 500. Okay, now look at the second statement. In a public show, 75% of seats were filled. If there were 600 seats in the hall, find the number of vacant seat. अब जितनी सीट हॉल में है उसमें से ही कुछ सीट ऑक्युपाइड रहेगी और उसमें से ही कुछ सीट वैकेंट रहेगी। हमें ऑक्युपाइड सीट का फील्ड सीट का परसेंटेज दिया है, सो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ वैकेंट सीट? इट विल बी 25%। हमें वैकेंट सीट फाइंड करनी है, सो स्ट्रेट अवे हम लोग क्या करेंगे? 600 का 25% कैलकुलेट करेंगे। 600 into 25 by 100 which is nothing but 150. 25% कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, कैसे? 25% इज इक्विवेलेंट टू 1/4। ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। 25% को ही हम क्या बोलते हैं? 1/4 बोलते हैं। सो व्हाट वी विल डू, स्ट्रेट अवे 600 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी कैन गेट द सेम आंसर। 4 ones are 4, 2 remaining 20, 4 5s are 20, and this is 0. So again answer is same, that is 150. So either you can go 25 by 100 या फिर 1/4 से भी मल्टीप्लाई किया तो दैट्स कंप्लीटली ओके। सो आई होप दिस क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। हम वही चेक कर रहे हैं, क्या मैक्सिमम इज 100%। हमें एक पार्ट पता है क्या दिया गया है एंड व्हाट्स द सेकंड पार्ट? द सेकंड पार्ट इज जो रिमेनिंग है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। व्हाट्स गिवन हियर? Out of 820 employees in an organization, 20% of the employees got promoted to a higher grade. How many employees did not get promoted? Okay. अब देखो उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉइज है टोटल? देयर वेर 820 एम्प्लॉइज। अब इन्हीं 820 एम्प्लॉइज में से कुछ लोगों को प्रमोशन मिला होगा तो कुछ लोगों को प्रमोशन नहीं मिला होगा। नाउ लुक एट दिस सेकंड स्टेटमेंट। 20% of the employees got promoted to a higher grade. कितने लोगों को प्रमोशन मिला है? 20% लोगों को प्रमोशन मिला है। So what is the percentage of non-promoted employees? It will be 80%. Maximum again यहाँ पे 100% रहेगा। 820 में से ही कुछ लोगों को प्रमोशन दिया जा रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिया जा रहा है। Now यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक ये हो सकती है। फर्स्ट, students will calculate 20% of 820, and whatever answer come over here student will subtract from 820, but I won't suggest that you have to go in this way. क्यों? क्योंकि आपको दो स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे। एक तो पहले परसेंटेज निकालो और फिर 820 में से माइनस करो। स्ट्रेट अवे पहले यहाँ पे ओरल कैलकुलेशन करो, बिकॉज इन एन एग्जाम ईच सेकंड इज इम्पोर्टेंट, एवरी सेकंड इज इम्पोर्टेंट। हमें टाइम मैनेजमेंट करना है। ऑफ कोर्स एप्टीट्यूड टेस्ट रखा क्यों जाता है? हमें हमारा टाइम मैनेजमेंट चेक करना है, एनालिटिकल स्किल चेक करनी है। कम समय में एक्यूरेसी के साथ
हमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इन दिस वे वी विल स्ट्रेट अवे कैलकुलेट द नॉन प्रमोटेड पीपल। Why to subtract? Why to do more mistake? Straight away 80% कैलकुलेट करेंगे हम किसका? 820 का। 820 एम्प्लॉइज वर देयर एंड उसमें से 80% लोगों को प्रमोशन नहीं मिला है। So let's calculate this. The zero get cancelled. The zero get cancelled. Right? Multiply by 8. 8 twos are 16. Carry 1. 8 eights are 64 and 1 65. So how many employees were not promoted? 656 employees were not promoted. See, यहाँ पे हमारा ये सब्ट्रैक्शन का टास्क बच गया, स्ट्रेट अवे हमें आंसर मिल गया। सो इन दिस वे यू हैव टू रिमेम्बर, जहां पे सिंपल कैलकुलेशन पॉसिबल है, ट्राई टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस orally. Okay, I hope this question is clear to everyone. Now look at this question. In an examination, it is required to get 45% marks to pass. Juhi secured 612 marks and she failed by 108 marks. Now, what are the maximum marks of the examination? Okay, they have given us passing percentage that every student who is appearing for that particular exam must secure 45% marks to pass. Okay, now this girl Juhi, she secured 612 marks, but वो एग्जाम पास हो पाई है क्या? नहीं, she was unable to clear the exam. Now what is given here? She yes. So I'm extremely sorry for the inconvenience. There were some connectivity issues on my side, so I'm extremely sorry for the disturbance. Don't worry, I'm going to repeat the part which we have left. Now look here, these questions we were discussing. Now please concentrate everyone. Out of 820 employees in an organization, 20% of the employees got promoted to a higher grade. How many employees did not get promoted? I already told you that 20% of the employees got promoted from these many employees, right? So what is the percentage of employees who were not promoted? The percentage will be 80%. First, what you will do, you will calculate 20% of this and then you will subtract from 820. So what will happen? यहाँ पे आपको दो step use करने पड़ेंगे. So this will be really difficult. This will be a time consuming part. तो straight away हम लोग यहाँ पे क्या calculate करने वाले हैं? The percentage of employees जिनका promotion नहीं हुआ था. And what's the percentage? The percentage is 80. Okay. Now let's divide this by 100. This 0 get cancelled. This 0 get cancelled. 8 twos are 16. Carry 1. 8 eights are 64 and 1 65. So what is the number of employees जिनको promotion नहीं मिला है? The number of employees are 656. Those who were not promoted. ठीक है? Instead of calculating 20% and subtracting from 8 to 20, please don't waste your time because every second is important. Time management is really a necessary part in exam. Now look at the second question. In an examination, it is required to get 45% to marks, 45% marks to pass. Juhi secured 612 marks and failed by 108 marks. What are the maximum marks of the examination? ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जाम में कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे, उसे कितने परसेंट मार्क नेसेसरी है पास होने के लिए? 45% marks are necessary. Okay, Juhi secured 612 marks and she failed by 108 marks. So what are the maximum marks of the examination? Now look at here. She already secured 612 marks, but she is unable to clear the examination. Now how many more marks were required by her to clear the examination? अगर उसे 108 marks और मिलते तो वो एग्जाम क्लियर कर जाती. तो कैन वी से इस 612 में अगर हम 108 मार्क्स ऐड करेंगे, these mark will be passing mark, isn't it? Definitely. Let's add this. 8 and 2 10, carry 1. 1 and 1 2, 6 and 1 7. So अगर जूही को 720 मार्क्स मिलते तो वो डेफिनेटली पास हो जाती, राइट? ना हमें पासिंग परसेंट पता है, पासिंग मार्क्स पता है. कैन वी से दिस पासिंग परसेंट 45% इज इक्वल टू 720? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? We have to calculate 100%. 100% is equal to how much?
Let's do the cross multiplication over here. Now cross multiplication हम लोग करने वाले हैं, क्या करेंगे 100 into 720 divided by what 45. Okay, 9 5s are 45, 9 8s are 72, this 0 as it is, 5 2s are 10, this 0 as it is, 8 into 2 it is 16, 20 as it is. So in that particular examination maximum marks kitne the 1600. I quickly repeat what we did. Juhi secured 612 marks, but she failed by 108 marks, right? So if she secures 108 mark more, वो pass हो जाती. So can we say 612 plus 108, which is nothing but 720, ये उस particular exam की passing mark है, और हमें passing percentage पता है, और एक exam के लिए passing percentage and passing mark must be equivalent. If 45% is 720, what's the value of 100%? So we have did cross multiplication and हमें final answer मिल गया 1600. तो उस exam के maximum marks कितने थे? Maximum marks were 1600. Okay. So I hope this is clear to everyone. Now let's check what's there on next slide. Yes. Now we are going to learn how to calculate 100%, 10% and 1% quickly. Please concentrate here because this will going to help you a lot in calculation. Now 100% means what? Right now we have solved so many questions. 100% is maximum total. जो जितना है पूरा के पूरा वैसा ही हमें देना है. अब यहाँ पे देखो अगेन मैं एग्जांपल रिपीट करती हूँ. 50 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया, 50 प्रेजेंट है. सो व्हाट्स द परसेंटेज कितना होगा? 100% लोग प्रेजेंट है. 100 लोगों ने रजिस्टर किया, 100 लोग प्रेजेंट है. सो अगेन परसेंटेज इज व्हाट? 100%. उस विलेज में 5000 पीपल थे, सभी ने वोटिंग किया. सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वोटिंग? इट इज नथिंग बट 100%, राइट? कोई भी नंबर ले लो 1 से लेके इंफिनिटी तक, उसका 100% वही नंबर रहेगा. ठीक है? सो व्हाट विल बी द 100% ऑफ दिस नंबर? लुक एट हियर. 5000 का 100% हमें कैलकुलेट करना है. इसका 100% क्या रहेगा? द सेम नंबर दैट इज 5000. 100% मतलब मुझे ये पूरा नंबर चाहिए. आई वांट दिस नंबर एज दिस. व्हाट अबाउट 10%? इसका 10% कैसे कैलकुलेट करना है? 10% के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 10 बाय 100. 2 0 कैंसिल हो जाएगी इस 2 0 के साथ. 50 into 10 कितना हो जाएगा? 500. So what will be 10% of this number? It will be 500. Okay. What about 1%? क्या करेंगे हम इसके लिए? We'll multiply this by 1 by 100. So 2 0 cancel, 2 0 cancel. 1% of this number will be 50. Now, अब इसका यूज हमें कैसे करना है? हमें कैसे आसानी से इसे याद रखना है? Look here, 100% is the same number 5000, right? What about 10%? Now onwards हम हर बार ये नहीं करते बैठेंगे. Look at this number. Right hand side से just आपको एक जीरो कम करना है. So what will be 10% of this number? 500. And what about 1%? Remove one more zero from right hand side. Total 2 0 रिमूव हो जाएंगे तो आंसर क्या रहेगा आपका? आंसर मिलेगा आपको 50. 10% के लिए 1 0 रिमूव करो एंड 1% के लिए 2 0 रिमूव करो. अब यहाँ पे अच्छी बात है हमारे पास जीरो है. व्हाट अबाउट सच नंबर्स? ऐसे नंबर हमारे पास रहेंगे तो क्या होगा? लुक हियर, उसके लिए भी सोल्यूशन है, डोंट वरी. 100% विल बी अगेन सेम. हमने सीखा है कोई भी नंबर ले लो 1 से लेके इंफिनिटी तक, उसका 100% वही रहेगा. सो 100% ऑफ 2139 will be 2139. Okay. Now what about 10%? क्या करना पड़ेगा हमें इसको? Into 10 by 100. We have to calculate 10%. अब यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा. What remains over here? Denominator में क्या रहता है? 10. And always remember in mathematics, denominator में जितने जीरो है उतने डेसिमल आपको न्यूमरेटर में देने हैं. लेट्स से देयर आर 2 0, 2 डेसिमल दीजिए. 3 0 है तो 3 डेसिमल. 3 डेसिमल मतलब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस रहेंगे? 3. लेट्स से यहाँ पे 2 zeros है तो डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस रहेंगे? 2. अभी देखो यहाँ पे कितने जीरो है? ओनली 1 0. तो हमें डेसिमल कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा? एक प्लेस से शिफ्ट करना पड़ेगा. सो व्हाट इज द 10% ऑफ दिस नंबर? इट विल बी 213.9. What about 1% of this number? क्या करना पड़ेगा हमें? इसको 1 by 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा.
बट द मोमेंट यू मल्टीप्लाई बाय 1/100 ये 2 जीरो एज इट इज रहते हैं, तो 2 जीरो हटाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 2 प्लेसेस से डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट विल बी द सोल्यूशन, 1% होगा 21.39, 100% इज द सेम नंबर, 10% के लिए एक डेसिमल शिफ्ट करो एंड 1% के लिए 2 डेसिमल्स आपको शिफ्ट करनी है। ठीक है, अभी देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैसे यूज करने वाले हैं। लुक हियर, इंपॉर्टेंस, you people know how to calculate 100%, 10% and 1%. now 100% of any number is same number, right? कोई हमें पूछ सकता है 200% कैलकुलेट करो, तो 200% हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100% को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सम में आस्क टू कैलकुलेट 300%, तो हम क्या करेंगे, 100% को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सम में आस्क टू कैलकुलेट 400%, तो हम क्या करेंगे, 100% को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 26, व्हाट विल बी द 100% ऑफ दिस नंबर, इसका 100% 26 रहेगा। व्हाट अबाउट 200%, क्या करना पड़ेगा हमें, 100% को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 200% विल बी 52। बहुत सही तरीके से आप सोच रहे हो, यस बिल्कुल सही है। व्हाट अबाउट 300%, क्या करना पड़ेगा हमें, 100% को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 26 इंटू 3, 3 6 18, carry 1, 3 2 6 and 1 7, 26 into 3 is 78। तो इस नंबर का 300% कितना मिला है आपको, 78 मिला है। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट 10%, या तो एक जीरो हम रिमूव करते हैं या फिर एक डेसिमल हम शिफ्ट करते हैं, राइट। नाउ कोई हमें पूछेगा 20% कैलकुलेट करो, तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, 10% को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई हमें पूछेगा 30% कैलकुलेट करो, तो हम उस वक्त क्या करेंगे, 10% को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई हमें पूछेगा 40% कैलकुलेट करो, तो हम क्या करेंगे, 10% को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50% के लिए 10 इंटू 5, 60% के लिए 10 इंटू 6, 70% के लिए 10 इंटू 7 एंड सो ऑन। ये ऐसा आपको करते जाना है। ठीक है, नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल ओवर हियर, सेम नंबर हम पिक करते हैं 26, व्हाट विल बी 10% ऑफ दिस नंबर, हमने अभी अभी सीखा है, जीरो होता तो कैंसिल होता, पर जीरो है क्या, नहीं है, तो जीरो अगर नहीं है तो इसका 10% क्या रहेगा, 2.6। व्हाट अबाउट 20%, हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो लेट्स मल्टीप्लाई 2.6 बाय 2, 2 6 12, कैरी 1, 2 2 4 and 1 5, सो 26 का 20% क्या रहेगा, 5.2। व्हाट अबाउट 30%, 2.6 इंटू 3 करेंगे, सो इट विल बी व्हाट, 7.8। 40% के लिए क्या करेंगे, 2.6 इंटू 4 एंड वी विल कैरी ऑन द प्रोसेस। ठीक है, अभी देखो 1%, 1% आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है, या तो 2 डेसिमल शिफ्ट करो या 2 जीरो कैंसिल करो। नाउ इफ समवन आस्क यू टू कैलकुलेट 2%, आप क्या करोगे, 1% को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 3% अगर आपको कोई पूछ रहा है, 1% को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 4% अगर आपको कोई पूछ रहा है, तो आप 1% को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और नंबर हम पिक करते हैं, लेट्स से 320, क्या कर रहे हैं हम, 320, हमें 320 का 1% कैलकुलेट करना है। अब देखो 1% मतलब क्या, इंटू 1/100, बट हमने सीखा है 1% के लिए हम 2 डेसिमल शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट विल बी 1% ऑफ दिस नंबर, इट विल बी 3.2। व्हाट अबाउट 2%, 2% के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6। व्हाट अबाउट 3%, 3.2 इंटू 3, 10% को सॉरी 1% को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 9.6। तो 4% के लिए 1 इंटू 4, 5% के लिए 1 इंटू 5, 6% के लिए 1 इंटू 6 एंड सो ऑन। जो जिसके मल्टीपल है उसका हमें यूज करना है। नाउ सेम टेक्निक यूज करके हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर सॉल्व करने वाले हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू अलॉट इन द कैलकुलेशन। नाउ लुक हियर, वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज 4 क्वेश्चन बाय आवर न्यू मेथड। अब देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, 55% ऑफ 162। नाउ यहाँ पे हम ट्रेडिशनल मेथड यूज नहीं करने वाले, 50 इंटू 162 डिवाइडेड बाय 100, आई नो दिस मेथड, वी कैन डेफिनेटली गो वाया दिस मेथड, आंसर मिलेगा, बट यहाँ पे हमने अभी नया मेथड सीखा है, तो वी आर गोइंग टू यूज दैट। कैसे यूज करेंगे देखो,
इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे 50% प्लस 5%। कैन वी राइट इन दिस वे? जी हाँ, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ we will calculate 50% of this number, we will calculate 5% of this number। पर कैसे? हमारे पास 10% है, 10% का हेल्प लेके 50%, 10% इंटू 5। हमारे पास 1% है, 1% का हेल्प लेके 1% इंटू 5 वी विल कैलकुलेट 50 एंड 5%। बट थिंक इन सम डिफरेंट वे। 50% मतलब क्या? 50% is simply half. So is there any need to go in this way 10% into 5? नहीं, कोई भी जरूरत नहीं। हम स्ट्रेट अवे क्या करेंगे, इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे to calculate 50%. So what is 50% of this number? 50% will be 81. Now what about 5%? 5% कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि हमें 1% पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा and then we will multiply by 5. No doubt this is correct. Yeah, this is perfect. But look at this arrangement. Here it is 5, here it is 5, right? और यहाँ से यहाँ तक जस्ट एक जीरो कम हो रहा है। देखो मैंने आपको 100, 10 एंड 1 समझाया। 100 to 10 एक जीरो कम हो रहा था, 10 to 1 एक जीरो कम हो रहा था। और यही जीरो का इफेक्ट राइट हैंड साइड पे आंसर पे पड़ रहा है। 100% विल बी सेम नंबर, 10% हुआ था 500, 1% हुआ था 50। सेम सीन यहाँ पे हो रहा है ना, जस्ट एक एक जीरो रिमूव हो रहे हैं या फिर एक एक डेसिमल शिफ्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे 50 to 5 द फर्स्ट डिजिट इज सेम, बस एक जीरो का डिफरेंस है। तो क्या करेंगे हम, राइट हैंड साइड से एक डेसिमल पुश करेंगे, दैट्स इट, वी विल गेट 5%। सो नाउ लेट्स ऐड दिस 81 plus 8.1 will be what? 89.1. So what is 55% of this number? 162 का 55% है 89.1। What about 88% of 324? सेम वे में हम जाएंगे, कैसे जाएंगे? 88% will be 80 plus 8। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। 88% के लिए अभी क्या करना पड़ेगा हमें? 80 and 8% कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन 80% के लिए कुछ डायरेक्ट ट्रिक नहीं है इस बार। तो 80% हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? विल कैलकुलेट 10% फर्स्ट एंड विल मल्टीप्लाई दैट बाय 8। चलिए, अब इसका 10% क्या होगा? 324 का 324 का 10% जस्ट एक डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा, इट विल बी व्हाट? 32.4, राइट? हमें चाहिए 80%, तो सेम आंसर को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड द मोमेंट यू मल्टीप्लाई बाय 8 टू दिस नंबर यू विल गेट 259.2। ओके, 80% आपको मिल गया। अब हमें चाहिए 8%। नो डाउट आप इस वे में बिल्कुल सही सोच रहे हो कि हम 1% इंटू 8 से जाएंगे, पहले 1% कैलकुलेट करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट लुक एट दिस अरेंजमेंट, फर्स्ट डिजिट इज सेम, राइट? यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है? जस्ट एक जीरो का ही तो डिफरेंस आ रहा है। सो व्हाट विल डू, ये जो भी आंसर यहाँ पे है उसमें हम एक डेसिमल और शिफ्ट करेंगे। सो व्हाट विल बी द आंसर? 25.92। Now when shifting the decimal, ये डेसिमल एज इट इज रहेगा, ये एक डेसिमल एज इट इज रहेगा और उसके आगे एक और डेसिमल। सो कितना हो जाएगा? इट विल बी 25.92। Now let's add this two result, 80% and 8%. After addition, you will get the final answer as 285.12. I hope these two questions are clear to everyone. Now let's look at third question. क्या दिया है? 145% of 924. Now in what way you will do the calculations over here? आप कैसे करोगे यहाँ पे? देखो मैं बताती हूँ, आप इस वे में सोच रहे हो, आप बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हो, गलत कुछ भी नहीं। 100 plus 40 plus 5. Definitely most of you are thinking in this way only. Yeah, I know this is the correct way, but can we go via more simplified way? क्या हम और simplified way में जा सकते हैं? बिल्कुल। अब कैसे जा सकते हैं? I will tell you over here. We will calculate 100%, then we will calculate 50%. 100 plus 50 क्या हो जाएगा? 150। अब हमें कितना चाहिए? 145। We will subtract 5% from this. अब इस वे में क्यों जाना है? क्योंकि 40% के लिए हमें 10 into 4 करना पड़ेगा, 5% के लिए हमें 1 into 5 करना पड़ेगा एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम इन दिस कैलकुलेशन। स्ट्रेट अवे हम इससे ही जाएंगे। देखो अभी कितना फास्ट होता है। 100% ऑफ एनी नंबर इज सेम, तो 924 का 100% 924। 50% इसका हाफ हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो, 2 4s are 8, 1 remaining 12,
2 6 are 12, 2 2 are 4, ये हुआ 50%. एंड व्हाट अबाउट 5%? जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे डिजिट सेम है, 0 कम हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट एक डेसिमल शिफ्ट करेंगे. सो व्हाट इट विल बी 46.2. नाउ बी केयरफुल इन लास्ट स्टेप. 150 को हमें ऐड करना है एंड 5% को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. नाउ आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल these steps you get the final answer as 1339.8. 100 plus 40 plus 5 is not wrong, that is also correct, but this will consume your time. Better you go in this way. Now last question हम चेक करने जा रहे हैं यहाँ पे 303% of 62. कैसे लिखेंगे 303% को, 303%. 300% क्या रहेगा, 100% को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 100% ऑफ एनी नंबर इज सेम, दैट इज 62. 62 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 186. अभी हमें चाहिए 3%. देखो यहाँ पे अगेन डिजिट सेम है, 2 0 कम हो रहे हैं, तो अगर 2 0 कम हो रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डेसिमल शिफ्ट करने पड़ेगी इन सेम आंसर, राइट. डोंट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग 1% इंटू 3. डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.86 2 डेसिमल शिफ्ट करेंगे, फाइनली ऐड करेंगे इस रिजल्ट को, तो क्या मिलेगा हमें 187.86. एंड रिमेंबर वन थिंग, ये जो डेसिमल शिफ्टिंग का पार्ट है ना, सेम डिजिट में एप्लीकेबल होता है, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 33 44, या फिर 3 डिजिट 222 333 444, लाइकवाइज सेम डिजिट है तो ही हम ये डेसिमल शिफ्टिंग का पार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते. जैसे कि 73% आया है, तो नो डाउट आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 70 एंड 3. 70 के लिए 10 इंटू 7, 3 के लिए 1 इंटू 3, इस वे में ही आपको जाना पड़ेगा. सो आई होप दिस मेथड ऑफ 100, 10 एंड 1% इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट. अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. Some questions are based on percentage, some are based on ratio, some are based on ages. So we'll see one by one each and every question. Now don't be afraid कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पाएगा क्या. स्लोली हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप जो भी डेटा दिया है क्वेश्चन में हम उसको नोट करने वाले हैं एंड वेरी फास्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, देखो यहाँ पे लेट्स रीड द एंटायर क्वेश्चन फर्स्ट. एटलीस्ट हमें थोड़ा सा तो आइडिया आ जाए. A survey of young people in the town of Badaville found that 50% of them prefer brand A. Another survey of 100 people in the town of Chotaville found that 60% prefer brand A. In total, 55% of all the people surveyed together prefer brand A. So what is the total number of people surveyed? ठीक है, हमारे पास क्या क्या दिया है, 2 टाउन दिए हैं, एक है बड़ाविले, दूसरा है छोटाविले. उसमें से कुछ कुछ लोगों का सर्वे किया गया है और उसमें से ब्रांड ए को प्रिफर करने वाले लोगों का परसेंटेज दिया है. ठीक है, चलो लिस्ट आउट करते हैं. सबसे पहले नंबर ऑफ पीपल सर्वेड, हाउ मेनी परसेंट प्रीफर टू ब्रांड ए फ्रॉम बड़ाविले, फ्रॉम छोटाविले. मैंने सिर्फ बड़ा एंड छोटा लिखा है, फ्रॉम बड़ाविले, फ्रॉम छोटाविले एंड टोटल, ये डेटा हमें दिया है. नाउ रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट अगेन. पढ़ो पहला स्टेटमेंट. A survey of young people in the town of Badaville found that 50% of them prefer brand A. Young लोगों का सर्वे किया गया and it is observed that out of these young people 50% prefer brand A. किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, ब्रांड A को प्रेफर कर रहे हैं. Read the second statement. Another survey of 100 people in the town of Chotaville found that 60% prefer brand A. 100 लोगों का सर्वे किया है छोटाविले से एंड इट इज ऑब्जर्व दैट आउट ऑफ दिस 60% प्रीफर ब्रांड ए. ओके, सेकंड स्टेटमेंट हो गया. थर्ड स्टेटमेंट. इन अ टोटल 55% ऑफ ऑल द पीपल सर्वेड टुगेदर प्रीफर ब्रांड ए. इन टोटल मतलब अगर हम दोनों भी टाउन का कंसीडर करें, बड़ा एंड छोटाविले का, तो टोटल कितने हो गए, इट विल बी n plus 100, राइट. And among this total, it is observed that 55% of them prefer brand A. Now, what is the total number of people surveyed? हमें किसके बारे में पूछा है, n plus 100 के बारे में पूछा है. So to get this value, हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले तो n कैलकुलेट करना पड़ेगा.
Let's calculate n. How to calculate this? That is the answer in screen. Next step में वही है. देखो बड़ा विले में क्या देखा गया है, टोटल n पीपल में से 50% पीपल प्रीफर ब्रांड ए. तो कितना होगा, n का 50% हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट. छोटा विले में क्या देखा गया है, 100 पीपल का सर्वे किया एंड आउट ऑफ विच 60% प्रीफर ब्रांड है. तो हम लोग इसका क्या करेंगे, 60% कैलकुलेट करेंगे. नाउ बड़ा विले एंड छोटा विले में जितने लोगों का सर्वे किया गया, अगर उन्हें हम इकट्ठा रखें, उनका हम टोटल करें, तो व्हाट इज ऑब्जर्व दैट इसमें से 55% लोग ब्रांड ए प्रेफर कर रहे हैं. सो बड़ा विले प्लस छोटा विले के लोग मस्ट बी total people. That's it. Can we solve this equation to get the value of n? Definitely कर सकते हैं. Now let's try to find out the answer. अभी देखो यहाँ पे क्या किया गया है, 50 into n it is 50n, 100 into 60 it is क्या हुआ है 6000. ना यहाँ पे देखो दोनों का बेस सेम है, और बेस सेम है तो हम न्यूमरेटर ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. और यहाँ पे बेस में क्या है 100 है, यहाँ पे बेस को कंबाइन कर दो, इट विल बी 100, राइट साइड में भी 100. तो कैन वी कैंसिल दिस 100? क्या हम इस 100 को कैंसिल कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं. सो व्हाट्स द रिमेनिंग पार्ट, 50 into n plus 60 into 100 which is equal to n plus 100 into 55. इस 55 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, 55 into n plus 55 into 100 will be 5500. चलो अननोन से एक तरफ लाओ, नंबर से एक तरफ लाओ. 6000 इसमें से 5500 माइनस करो, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. So when you subtract this, this will be what? 500. 50n को राइट साइड में शिफ्ट करो, 55n minus 50n it will be 5n. तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? The value of n is 100. पर हमें n पूछा है क्या? नहीं. They asked us to calculate total number of people surveyed. तो n का वैल्यू मिला हमें 100. छोटा विले में ऑलरेडी पता है 100 पीपल है, so 100 plus 200 your final answer. 100 plus 100 your final answer is 200. कितने लोगों का सर्वे किया गया है? 200 पीपल का सर्वे किया गया है. ओके, I hope this is clear to everyone. Now let's move towards the next part, next question. Look here, what is given? If m is 30% of q, q is 20% of p and n is 50% of p, then m by n is what? m n इसका हमें क्या करना है? रेशियो कैलकुलेट करना है. हमारे पास कौन से नंबर है? m है, q है, p है एंड n है. पहले तो उसे लिस्ट आउट करो, m q एंड p. अब देखो m is 30% of q, जब तक हमें q नहीं पता चलता m का वैल्यू पता नहीं चलेगा, बिकॉज m डिपेंड्स ऑन q. q is 20% of p, q is 20% of p. जब तक हमें p का वैल्यू पता नहीं चलता हम q का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते. बट इफ यू सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन में किसी का भी वैल्यू दिया नहीं गया है, तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा एंड नो डाउट रेशियो ही फाउंड करना है. तो यहाँ पे आप स्ट्रेट अवे p का वैल्यू 100 अज्यूम कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. ठीक है. नाउ q इज हाउ मच परसेंट ऑफ p? q इज 20% ऑफ p. p है हमारा 100, हमने कंसीडर किया है ना, तो इसका 20%, 100 into 20 by 100, दिस विल बी व्हाट? q का वैल्यू मिला 20. and m is 30% of q. The moment we get value of q, now we can calculate m. 20 into 30 by 100, 20 का 30% निकालना है, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल. 2 into 3 is what? 6. m का वैल्यू हमें मिल गया 6. एक और नंबर हमें दिया गया है n. n is 50% of p. चलो उसे भी कंसीडर करते हैं. n अगेन डिपेंड्स ऑन p. we know p is 100. 100 का 50% कितना आता है? ओरली आप लोग बता सकते हो, दैट इज 50, राइट. एंड वी हैव टू फाइंड m to n. m का वैल्यू है 6, n का वैल्यू है 50. both the numbers are even numbers and are divisible by 2. so 2 3s are 6, 2 2s are 4 and 2 5s are 10. what's the ratio of m to n? The answer is 3:25. Very simple question. m depends on q, q depends on p, n also depends on p. तो सबसे पहले p को 100 assume किया and thus with respect to that values हमने अलग other values calculate की. Very simple question. ऐसे भी question एग्जाम में पूछे जाते हैं. बहुत बार ऐसा होता है
कि डिफिकल्ट क्वेश्चन तो हमारे आसानी से सॉल्व होते हैं क्योंकि हमने एक माइंडसेट बना के रखा हुआ होता है, नेशनल लेवल का टेस्ट है तो डिफिकल्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। मे बी क्वेश्चन सिंपल भी रह सकते हैं, जस्ट यू आर इन दैट इंटेंशन की नहीं हार्ड क्वेश्चन आएंगे, हार्ड क्वेश्चन आएंगे, मैं सिर्फ हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, तो सिंपल क्वेश्चन में डाउट रहता है कहीं ना कहीं पे। तो ऐसा मत करो, इक्वल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ हार्ड रहेगी, कुछ मॉडरेट रहेगी एंड कुछ इजी भी डेफिनेटली रहते हैं। बस हमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन पूरा एग्जाम में रखना है एंड वी हैव टू सॉल्व। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि जो सॉल्व नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिस इज द ओनली की, कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। या इन अ सर्टेन सिटी, पहले तो पढ़ लेते हैं, अगेन बड़ा क्वेश्चन है, प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन, बड़े क्वेश्चन से डरो मत, बड़े क्वेश्चन अक्सर सिंपल होते हैं, अक्सर होते हैं। लुक हियर, इन अ सर्टेन सिटी 60% of the registered voters are party B supporters and rest are party A supporters. In an assembly election, if 75% of the registered party B supporters and 20% of the registered party A supporters are expected to vote for candidate A, what percent of the registered voters are expected to vote for candidate A? ठीक है, एक सिटी है जिसमें कौन सी पार्टीज है, जो भी वोटर्स है, जितने भी वोटर्स है, वो किस किस को सपोर्ट करते हैं, पार्टी ए एंड पार्टी बी को सपोर्ट करते हैं। अब एक कैंडिडेट ए इलेक्शन में खड़ा हुआ है, अज्यूम किया है पार्टी बी के कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पार्टी ए के भी कुछ लोग उसको वोट करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। सो हमें वही कैलकुलेट करना है, फ्रॉम दिस पार्टी ए एंड पार्टी बी कितने लोग, कितने परसेंट पीपल उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट करेंगे। बट अगर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में हमें पता नहीं है कि हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट्स वेर देयर, तो यहाँ पे अज्यूम करो टोटल वोटर्स 100। क्या अज्यूम करेंगे हम, टोटल वोटर्स 100 अज्यूम करेंगे। एंड आप ऐसा जरूर कर सकते हो क्योंकि परसेंटेज ही तो दिए गए हैं ना, तो परसेंटेज विल रिमेन सेम टिल द एंड। आप यहाँ पे वैल्यू कुछ भी ले लो, चाहे आप 1000 ले लो, 500 ले लो, द आंसर विल रिमेन सेम। बट आई ऑलवेज सजेस्ट टू गो विथ ओनली 100। ओके, नाउ कौन से पार्टीज है, पार्टी ए है एंड पार्टी बी है। कितने लोग सपोर्ट करते हैं, read the first statement. In a certain city 60% of the registered voters are party B supporter. तो 100 का 60% क्या होगा, 60 होगा। तो कितने लोग पार्टी बी को सपोर्ट कर रहे हैं, 60 लोग पार्टी बी को सपोर्ट कर रहे हैं एंड रेस्ट आर पार्टी ए सपोर्टर। पार्टी बी के सपोर्टर को छोड़ के जितने भी बचे वो पार्टी ए को सपोर्ट कर रहे हैं। सो 100 में से 60 हटा दो, हाउ मेनी पीपल लेफ्ट, 40 पीपल लेफ्ट। किसको सपोर्ट करेंगे, वो पार्टी ए को सपोर्ट करेंगे। नाउ इन एन असेंबली इलेक्शन, एक असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है जिसमें इट इज ऑब्जर्व दैट 75% of the registered party B supporters and 20% of the registered party A supporters are expected to vote for candidate A. This is the candidate A. कैंडिडेट ए को पार्टी बी के सपोर्टर में से कितने लोग वोट करेंगे, रीड दिस, 75% पीपल विल वोट। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। 25 3s are 75, 25 4s are 100, 4 1s are 4, 2 remaining 20, 4 5s are 20, 15 into 3 कितना होता है, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है, 45। सो आउट ऑफ 60 पीपल कितने लोग पार्टी बी को सपोर्ट, पार्टी बी में से, पार्टी बी के सपोर्टर में से कितने लोग कैंडिडेट ए को वोट करेंगे, 45 लोग कैंडिडेट ए को वोट करेंगे। एंड फ्रॉम पार्टी ए सपोर्टर कितने लोग दिए हैं, 20%। रीड हियर, क्वेश्चन में सब दिया गया है। तो 40 का 20% कैलकुलेट करते हैं, जीरो कैंसल, 4 into 2 इट विल बी व्हाट, 8। तो कितने लोग कैंडिडेट ए को सपोर्ट करेंगे, 8। हमें क्या निकालना है, टोटल पूछा गया है। What percent of the registered voters are expected to vote for candidate A? तो ऐसा इंडिविजुअल आंसर हम दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते हैं। तो पहले तो इसे ऐड करो, टोटल वोट्स कितने जा रहे हैं कैंडिडेट ए को, 8 + 45 दैट इज 53। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ वोट, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 53 वोट्स आउट ऑफ टोटल 100 वोटर्स इंटू 100 क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। 100 cancel, what is the percentage of vote, percentage of vote is 50%।
तो एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर कैंडिडेट ए कितने परसेंट लोग वोट करने वाले हैं? 53% लोग वोट करने वाले थे। देखो इतना तो सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट क्वेश्चन बड़ा है। पार्टी ए सपोर्टर्स, पार्टी बी सपोर्टर्स, फिर कैंडिडेट ए को बुलाया गया है, उसमें से इतने लोग, इसमें से इतने लोग, जस्ट सिंपल सी तो बात है, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो 4 स्टेप में आंसर है। आपको ऐसा लग रहा है कि इतना वक्त क्यों लग रहा है? बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट एंड विद द एक्सप्लेनेशन इट सीम्स दैट कि हाँ हमें थोड़ा वक्त लग रहा है, बट द मोमेंट यू सॉल्व दिस वोंट टेक मोर देन अ मिनट। 1 मिनट से ज्यादा समय आपको इसको नहीं लगने वाला है। ओके, द मोमेंट यू सी कि मुझे कुछ यहाँ पे दिया नहीं है, मुझे वोटर्स की जरूरत है, नहीं दिया है ना, परसेंटेज पता है ना, इमीडिएटली अज्यूम करो 100। और 100 जब भी आप अज्यूम करते हो ना, परसेंटेज निकालना बहुत आसान जाता है। सो इसलिए ऑलवेज 100 अज्यूम करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम मत करो। चलिए लेट्स क्विकली डिस्कस व्हाट्स देयर ऑन नेक्स्ट स्क्रीन। एक और क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या है। इफ A, B and C are three positive integers such that A is greater than B and B is greater than C, then which of the following is definitely true? हमें क्या दिया है? A, B, C तीन पॉजिटिव इंटीजर्स है। A is greater than B, B is greater than C। इसके अलावा कुछ दिया है क्या? नहीं। अब हम ये रिजल्ट कैसे फाइंड करें कि ये ट्रू है कि नहीं है? हमें डेटा अज्यूम करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अज्यूम करते वक्त क्या ध्यान में रखेंगे हम? A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन C। चलो 3 नंबर है, सबसे पहले C को अज्यूम करो 100, फिर B को अज्यूम करो 200, फिर A को अज्यूम करो 300। क्यों? क्योंकि हमें ये कंडीशन ट्रू रखना है, A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन C। नाउ रीड द फर्स्ट लाइन, रीड द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन है A% ऑफ B। A% मतलब 300% ऑफ B दैट इज 200 इज ग्रेटर देन B% ऑफ C। तो हमें सबसे पहले 300% ऑफ 200 कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? 300% ऑफ 200 कैसे कैलकुलेट करेगी? We'll divide this number by 100 into 200, right? 2 0 cancel, 2 0 cancel, 2 into 3 6, this is 0 as it is. So 300% of 200 is 600, right? And now we'll calculate B% ऑफ C। ऑप्शन देखो, ऑप्शन से जा रहे हैं हम। B% मतलब कितना परसेंट? 200% ऑफ C यानी कि 100। सो 200% हमें लेना है, मतलब यहाँ पे डिवीजन में 100 लेना पड़ेगा इनटू व्हाट? 100। सो दिस 100 गेट्स कैंसल, द आंसर इज 200। क्या लगता है आपको, क्या ये फर्स्ट नंबर ग्रेटर है सेकंड से? बिल्कुल करेक्ट है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है क्या? A% ऑफ B इज ग्रेटर देन B% ऑफ C। बिल्कुल 100% करेक्ट है। Now look at the second statement. Second statement, please don't solve this. इसको सॉल्व नहीं करना है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ, और वो ट्रिक क्या है? यहाँ पे है, x% ऑफ y is always equal to y% of x। लेट्स से हमारे दो नंबर है, हमारे पास दो नंबर है, हमें कैलकुलेट करना है 10% ऑफ 30। 10% ऑफ 30 कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 10 by 100 into 30, दिस 2 0 कैंसल, 3 into 1 कितना आता है? 3 आता है। 10% ऑफ 30 कैलकुलेट किया, अभी इसको रिवर्स करो, 30% ऑफ 10 कैलकुलेट करो। 30% ऑफ 10 कितना होगा? 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, इट विल बी अगेन 3। x% ऑफ y इज ऑलवेज इक्वल टू y% ऑफ x। A% of B is always equal to B% of A। तो कैन वी से इसका आंसर अगेन 600 आएगा, जस्ट लाइक आवर फर्स्ट ए। बिल्कुल। B% of C is same as that of C% of B। तो इसका आंसर क्या आएगा? 200, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। B% of A is greater than C% of B। देखो ना, 600 is more than 200, right? So isn't it correct? जी हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड, चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। C% ऑफ A 100% ऑफ 300, हमने अभी अभी सीखा है 100% ऑफ एनी नंबर इज द सेम नंबर दैट इज 300। B% ऑफ C 200% ऑफ 100, क्या करना पड़ेगा हमें? 100% का डबल, तो 100 into 100 कितना होता है? 200। नो डाउट 300 इज ग्रेटर देन 200। तो इसका मतलब ऑल थ्री ऑब्जर्वेशंस आर डेफिनेटली ट्रू। देखो
द मोमेंट यू सी सच अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे आपको नंबर नहीं दिए हैं, यू आर फ्री, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। यू कैन गो वाया 10, 20, 30, यू कैन गो वाया 1, 2, 3, बट क्या हो जाएगा, आप अगर 1, 2, 3 लोगे ना, वहां पे डेसिमल आएंगे एंड डेसिमल में आपको नहीं जाना है, डेसिमल वेस्ट योर टाइम। प्लीज ट्राई टू कीप द कैलकुलेशन इन होल नंबर ओनली। डेसिमल गलत होती है ऐसा नहीं है, जहां पे डेसिमल आना चाहते हैं हमें लेना ही पड़ेगा, बट जहां पे पॉसिबल है, अब यहाँ पे देखो 100, 200, 300 से कितना क्विकली हो गया। आप 10, 20, 30 से भी जा सकते हो, 40, 50, 60 से भी जा सकते हो। कोई भी 3 नंबर पिक करो, जस्ट क्या ट्रू होना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी मस्ट बी ग्रेटर देन सी। ओके, सो 300, 200, 100 लेने से क्या हुआ, जीरो एलिमिनेट करना बहुत आसान होता है, इसलिए हम ऐसे नंबर अज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में यू आर फ्री टू अज्यूम एनीथिंग। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 5 boxes in a cargo. The weight of first box is 200 kg and second box is 20% heavier than the third box, which is 20% heavier than the first box. The fourth box, which weighs 350 kg, is 30% lighter than fifth box. Find the difference between average weight of 4 heaviest boxes and the 4 lightest boxes. ठीक है, टोटल कितने बॉक्स है हमारे पास, 5 बॉक्स है। लेट्स लेबल देम एज ए बी सी डी एंड ई। कर लिया हमने लेबल। लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट, द वेट ऑफ फर्स्ट बॉक्स इज 200 kg, लिख दो उसके नीचे, एंड सेकेंड बॉक्स इज 20% हेवियर देन द थर्ड बॉक्स। सेकेंड बॉक्स इज 20% हेवियर देन द थर्ड बॉक्स। जब तक थर्ड बॉक्स का वेट नहीं मिलता हमें सेकेंड बॉक्स का वेट नहीं मिलेगा, राइट। एंड व्हाट इज गिवन, रीड दिस एंटायर स्टेटमेंट इन कंटिन्यूअस वे, क्योंकि लिंक देखो कैसा है। सेकेंड बॉक्स इज 20% हेवियर देन द थर्ड बॉक्स, विच मतलब थर्ड बॉक्स, विच इज हेवियर देन द फर्स्ट बॉक्स। सो फर्स्ट बॉक्स से थर्ड बॉक्स कैसा है, हेवियर है, और फर्स्ट बॉक्स का वेट हमें पता है क्या, बिल्कुल पता है। अब इससे हेवियर है कितना परसेंट, 25%, मतलब एडिशनल 25% वेट हमें इसमें ऐड करना है। ओके, जस्ट वेट अ मोमेंट, या सॉरी गलती से स्लाइड चेंज हुआ था। सो अभी देखो, विच इज 25% हेवियर देन द फर्स्ट बॉक्स, इससे 25% हेवियर है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे, विल मल्टीप्लाई दिस बाय 125 बाय 100। नाउ यू मे थिंक दैट मैम यहाँ पे तो 25% ही दिया है, फिर आपने 125 क्यों लिया, या आई विल टेल यू व्हाई आई हैव टेकन 125। द मोमेंट दे सी इट इज 25% हेवियर देन द फर्स्ट बॉक्स, इसका मतलब फर्स्ट बॉक्स का जो वेट है ये 100% कंसीडर करना पड़ेगा हमें, राइट, एंड इन एडिशन टू दिस 25%, तो टोटल हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 125%, दैट्स इट, यही लॉजिक है उसमें। लेट्स कैंसिल दिस जीरोस, 2 into 125 विल बी 250 kg, तो हमें थर्ड बॉक्स का वेट मिल गया। अभी देखो थर्ड बॉक्स के वेट पे सेकेंड बॉक्स है, सेकेंड बॉक्स की क्या दिया है, द सेकेंड बॉक्स इज 20% हेवियर देन द थर्ड बॉक्स, we got the weight of third box 250 kg, right, and 20% heavier than this, मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, 120% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका 120% कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो कैंसिल दिस जीरो, कैंसिल दिस जीरो, 25 into 12 will give you the multiplication 300 kg and this is nothing but the weight of second box। चलो फर्स्ट का वेट मिल गया, सेकंड का मिल गया, थर्ड का भी मिल गया। रीड द नेक्स्ट स्टेटमेंट, the fourth box which weighs 350 kg, मतलब फोर्थ बॉक्स का वेट दिया गया है 350 kg, चलो अच्छा है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। the fourth box which weighs 350 kg is 30% lighter than fifth box, पर हमें फिफ्थ बॉक्स का वेट पता है क्या, नहीं। यही स्टेटमेंट का यूज हम फिफ्थ बॉक्स का वेट कैलकुलेट करने के लिए करने वाले हैं। सो लेट्स अज्यूम द वेट ऑफ फिफ्थ बॉक्स इज यक्स, अभी हमें यक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, एंड व्हाट वी नो दैट ये जो फोर्थ बॉक्स है 30% लाइटर है फिफ्थ बॉक्स से, तो 30% लाइटर है मतलब इसमें से हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा, यक्स में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 30%। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस, वो सब्ट्रैक्शन करने से बेटर है हम डायरेक्ट इसका 70% कैलकुलेट करेंगे ना,
and 70% of x is nothing but weight of fourth box, that is 350 kg. 30% lighter है, 30% remove कर दो 100 में से, so that will be 70% of x. Can we calculate value of x from this? Definitely. कैसे? 70 by 100 यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में पुश करो, 350 into 100 by 70. This zero cancel, zero cancel. 7 5s are 35, 5 into 100 कितना आता है? 500 kg. तो x का वैल्यू कितना है? The value of x is 500 kg. ओके, सभी बॉक्स के वेट मिल गए हमें, 200, 300, 250, 350 एंड 500. नाउ वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेट ऑफ 4 heaviest box and average weight of 4 lightest box. 4 heaviest मतलब कौन से रहेंगे? देखो 500, 350, 300, 250. एवरेज हमें लेना है तो हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं. यू हैव टू डिवाइड दिस बाय 4. I request everyone, please don't waste your time in adding this. इसको calculate नहीं करना है, please. Now, these are the 4 heaviest boxes. अभी 4 lightest boxes. 200, 250, 300, 350 और इनका एवरेज कितना हो गया? Divide by 4. Now, base common है, साइड में ले लो 1/4. ब्रैकेट में अभी देखो क्या रहेगा, ये चारों टर्म्स एज इट इज रहेगी. मैंने लिखा एज इट इज 500, 350, 300, 250 और माइनस यहाँ पे है और मुझे ये ब्रैकेट रिमूव करना है, तो सभी के सिंबल नेगेटिव में चेंज कर दो. नाउ लुक हियर एवरीवन, 350 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 300 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 250 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा. ब्रैकेट में क्या बचता है? 500 minus 200 that is 300. 300 by 4 डिवाइड कर लो, द आंसर इज 75 kg. डायरेक्टली आपको डिफरेंस मिलता है. प्लीज उसको ऐड करना, उसको 4 से डिवाइड करना, फिर लाइटेस्ट बॉक्स का 4 का एडिशन, फिर डिवीजन, फिर उनका सब्ट्रैक्शन. नो, प्लीज अवॉइड दिस. 1 मिनट या 2 मिनट इस क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है अगर आप इस वे में जा रहे हो. रफ शीट का अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लो, क्योंकि रफ शीट ही ऐसी चीज है जिस पर आप एकदम क्लियरली सब कुछ कर सकते हो. डोंट कीप इन माइंड कि मैं ओरली ऐसे कैलकुलेशन करूंगा, कभी कभी नहीं हो पाते ओरली. आपको ओरली क्या कैलकुलेट करना है? 100 into 2, 100 into 3, ऐसे जो सिंपल कैलकुलेशन है, यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशंस ओरली. एंड ऐसे टाइप की कैलकुलेशन के लिए इमीडिएटली सारी चीजें आपको पेपर पे मेंशन करनी ही है. ओके, so I hope this question is clear to everyone. Now let's move towards next question. Yeah, अभी नेक्स्ट हम लोग क्या सीखने वाले हैं? रेशियो प्रपोर्शन का कंसेप्ट सीखने वाले हैं. एजेस के लिए कुछ खास फॉर्मूला नहीं है. जो फॉर्मूला आप एवरेज में यूज करते हो, जो परसेंटेज में आप सीखते हो, वही फॉर्मूला एजेस के लिए कैरी होगा. एक्चुअली अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है. रेशियो के कंसेप्ट, परसेंटेज के कंसेप्ट ही हमें उसमें अप्लाई करना है. नाउ आई जस्ट वांटेड टू ब्रीफ यू समथिंग अबाउट रेशियो. रेशियो को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट द रेशियो इन A by B फॉर्म. रेशियो क्या होता है? रेशियो किसके लिए यूज किया जाता है? रेशियो इज यूज टू शो द अनकॉमन पार्ट. एंड ऑलवेज रिमेंबर एवरीवन, देयर इज वन कॉमन फैक्टर इन द रेशियो. एंड हम मोस्टली उसको किससे डिनोट करते हैं? एक्स से ही डिनोट करते हैं. लेट्स से इफ I say you there is a ratio of 3:2 between the ages of two friends. A and B दो फ्रेंड्स है, कैपिटल A कैपिटल B, और उनके एजेस का रेशियो क्या है? 3:2. मैंने आपको कहा है रेशियो में कॉमन फैक्टर होता है, तो A एंड B के एजेस क्या रहेंगे रिस्पेक्टिवली? 3x एंड 2x. नाउ रेशियो हमें दिया है, कैन वी फाइंड आउट देयर एजेस? चलो ट्राई करते हैं x के अलग अलग वैल्यूज लेकर. लेट से आप कहोगे मैम x का वैल्यू 2 रखो. चलो 3 into 2 6, 2 into 2 4. कोई कहेगा x का वैल्यू 5 रखेंगे, 3 into 5 15, 2 into 5 10. सब में से x का वैल्यू मैम 10 लेते हैं. चलो उस वक्त क्या होगा? 3 10s are 30, 2 10s are 20. कोई कहेगा मैम 7 लेते हैं. ओके, 3 7s are 21, 2 7s are 48. So likewise you can take any number from 1 to infinity to calculate the actual ages of A and B. पर अभी इससे क्या होगा? कैन यू कैलकुलेट एग्जैक्ट एज? नहीं. कोई बोलेगा 2 से, कोई करेगा 5 से, कोई करेगा 10, कोई करेगा 7,
कोई 4 से करेगा, कोई 11 से करेगा, देयर आर लॉट ऑफ आंसर। तो एक्चुअल एजेस तो हमें मिल ही नहीं रहे ना, तो इसके लिए रेशो नहीं, रेशो के साथ हमें क्या जरूरी है, एक कंडीशन भी जरूरी है। नाउ आई विल गिव यू अ कंडीशन, द समेशन ऑफ देयर एजेस इज 20 ईयर। क्या समेशन है उनके एजेस का, इट शुड बी 20। सो लुक दिस, हाउ टू सॉल्व, यू पीपल नो द रेशियो 3:2, 3x plus 2x, कॉमन फैक्टर तो लेना ही है, 3x plus 2x is 20, 5x is equal to 20, तो x का वैल्यू कितना होगा, 5 4s are 20, x का वैल्यू 4 मिल गया तो क्या रहेगी, 3 into 4 12 एंड 2 into 4 एजेस। देखो 12 plus 8 20 होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो रेशियो के साथ आपको एक कंडीशन होना जरूरी है, उसको इक्वेट करो, समेशन दिया है तो समेशन लो, डिफरेंस लिया है तो डिफरेंस लो, कोई इश्यू नहीं है। तो इक्वेट करो, एजेस फाइंड करो, दिस इज द सिंपल कंसेप्ट अबाउट रेशियो। एंड व्हाट अबाउट प्रपोर्शन, प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन इज नथिंग बट इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, बोथ द रेशियोज आर इक्वल, a by b is equivalent to c by d। जैसे जैसे a by b का रेशियो इंक्रीज होगा वैसे वैसे c by d का भी रेशियो इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, लेट्स से मैंने आप लोगों का एप्टीट्यूड का टेस्ट कंडक्ट किया विच इज ऑफ 20 मार्क्स, कितने मार्क्स का है टेस्ट, 20 मार्क्स का, एंड आई अनाउंस दैट द पर्सन जो जितने मार्क्स सिक्योर करेगा, आपको सभी स्टूडेंट को कंसीडर किया जा रहा है, एंड द पर्सन जितने मार्क्स स्कोर करेगा उसको उतने चॉकलेट्स मिलेंगे। तो अगर कोई 20 मार्क्स स्कोर करेगा तो 20 चॉकलेट, कोई 15 करेगा तो 15, कोई 5 स्कोर करेगा तो 5 चॉकलेट, 2 करेगा तो 2 चॉकलेट, तो सेम वे। तो यहाँ पे मैं चॉकलेट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या बेस यूज कर रही हूँ, मार्क्स का बेस यूज कर रही हूँ। तो जैसे आपके मार्क्स बढ़ेंगे वैसे चॉकलेट्स बढ़ेंगे, मार्क्स कम तो चॉकलेट्स भी कम, दिस इज नथिंग बट द प्रपोर्शन। टू रेशियोज आर इक्वल, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, दैट्स इट, दिस इज अबाउट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगेन रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी कोई खास फॉर्मूला नहीं है, हमें जस्ट यही से चेक करना है, एक कॉमन फैक्टर लेना है, कंडीशन के साथ इक्वेट करना है, आंसर फाइंड करना है, दैट्स इट। नाउ लेट्स लुक हियर, वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। नाउ रुपीज 8778 is distributed among A, B, C such that A gets 4 by 51 of what B and C together and C gets 3 by 4 of what A and B together get. We have to find C's share. Okay, total amount कितना है, 8778, कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, A, B and C. So can we say if we add the shares of A, B and C, the summation must be 8778? बिल्कुल। Look at the condition, कैसे डिवाइड किया है, A gets 4 by 51 of what B and C together, A is equal to B plus C को जितना भी मिला है उसका 4 by 51 शेयर किसको मिला है, A को मिला है। एंड दूसरा कंडीशन, C gets 3 by 4 of what A and B together get, C को कितना मिला है, A and B को जितना मिला है उसके exactly कितना मिला है, 3 by 4। Now I am going to use this equation to solve further question. I will multiply this 4 by this, तो क्या होगा, 4C is equal to 3A plus B, फिर 3 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 4C by 3 is equal to A plus B. Now look at the first condition, A plus B plus C is 8778। क्या मुझे A plus B के बारे में कुछ पता चल गया, क्या मुझे A plus B के बारे में कुछ पता चल गया, yes, can I substitute, can I replace A plus B with 4C by 3? बिल्कुल कर सकते हैं, put in this equation instead of A plus B 4C by 3, and what's the third number, third number as it is रखो, 4C by 3 plus C is equal to 8778। लुक एट द लास्ट स्टेटमेंट, हमें क्या फाइंड करना था, C का शेयर तो फाइंड करना है, सो कैन वी सॉल्व दिस इक्वेशन टू गेट द C शेयर, डेफिनेटली। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पे 4C plus 3C 7C by 3 is equal to 8778, C is equal to 8778, ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 7 आएगा डिवीजन में, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1s are 7, 1 remaining 17, 7 2s are 14, 3 remaining 37, 7 5s are 35, 2 remaining 28, 7 4s are 28. Multiply this by 3,
You get the final answer as 3762. अभी देखो ये वाला कंडीशन तो हमने यूज ही नहीं किया, रिडंडेंट हो गया ये कंडीशन, इसकी कोई जरूरत ही हमें नहीं पड़ी है। ठीक है, इस कंडीशन से हमें हमारा आंसर मिल गया। सो व्हाट्स द सी इज द शेयर, सी इज द शेयर इज 3762। देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें कंडीशन रिडंडेंट हो जाता है, जस्ट टू मेक अस कंफ्यूज, ऐसे कंडीशन क्वेश्चन में पुट किए जाते हैं। बट यू हैव टू बी लिटिल स्मार्टर, क्योंकि यहाँ पे आखिर में किसका शेयर पूछा है, सी का। आपको आपको लगेगा ना कि मैम ने यही कंडीशन क्यों यूज किया, बिकॉज आई कुड सी सी ओवर हियर। अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट यूज करती तो मुझे ए के बारे में जानकारी मिलती। अगर मुझे यहाँ पे पूछा होता कैलकुलेट ए इज अ शेयर, तो उस वक्त मैं ये इस्तेमाल करती, बट अभी मुझे किसका पूछा है, सी का, तो आई विल हिट ओनली दिस कंडीशन। जहां पर मुझे सी दिख रहा है वैसे तो शुरू करेंगे ना हम। सो वो कंडीशन रिडंडेंट हो गया एंड दस वी गॉट द आंसर फॉर सी इज द शेयर एज 3762। I hope this question is clear to everyone. Now let's move towards the next question. क्या दिया है यहाँ पे? In a village, 3/4 of the men and 4/5 of the women in a village participated in an event. एक event में 3/4 of the men, 4/5 of the women ने participate किया है. Total, there were 67 people participated, out of which 27 are male. So total, how many people were there in a village? टोटल कितने लोग हैं हमें पता है क्या, नहीं, वही तो फाइंड करना है। अब मेन वुमेन के बारे में डेटा दिया है, तो लेट्स अज्यूम टोटल मेन बी एम, टोटल वुमेन बी डब्ल्यू, और फाइनली हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल पीपल इन विलेज मिल जाएगा। नाउ लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या दिया है, 3/4 ऑफ द मेन एंड 4/5 ऑफ द वुमेन, इतने लोगों ने उस पर्टिकुलर इवेंट में पार्टिसिपेट किया। एंड सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है, जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनका काउंट क्या था, 67। तो टोटल मेन है एम, उसका 3/4, टोटल विमेन डब्ल्यू, उसका 4/5। ये लोगों ने इवेंट में पार्टिसिपेट किया एंड उनका काउंट कितना है, उनका काउंट 67 है, राइट। Out of which, read this statement again, total there were 67 people participated, out of which 27 are male. So can I say this 3/4 of men is 27? Because we know that out of total men 3/4 of men ने participate किया है, and now I know 27 male ने participate किया है, so 3/4 of men is 27 प्लस 4/5 ऑफ वुमेन इज इक्वल टू 67। चलो 27 को राइट में पुश करो, माइनस हो जाएगा यहाँ से, 67 माइनस 27 विल बी 40। 4/5 ऑफ वुमेन इज 40, तो वुमेन विल बी 40 इंटू 5/4, 4 1 जा 4, दिस इज 0, तो वुमेन कितनी हो गई, 50। उस विलेज में टोटल कितनी वुमेन है, नंबर ऑफ वुमेन तो हमें मिल गया 50। अभी हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मेन निकालना है, मेल पर्सन कितने थे, मेन कितने थे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पार्टिसिपेशन वाला ही डेटा हम कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है आउट ऑफ टोटल मेन 3/4 ऑफ मेन ने पार्टिसिपेट किया था, राइट। 3/4 के बारे में हमें जानकारी है, if 3/4 is 27, what is the value of one part? One part indicates total number of male. One part क्या indicate करता है, total how many male were there in the village. So we'll do cross multiplication over here. Okay, 27 into 1 divided by what, 3/4. So the moment we do this 27 into 1 27 and division में 3/4 है, तो क्या हो जाएगा ये, into 4/3। See 27 into 1 और इसके डिवीजन में 3/4, and the moment you shift this 3/4 to numerator, this becomes 4/3। तो कितना हो जाएगा ये, 3 9s are 27, 9 into 4 which is nothing but 36। So how many male members were there, how many men were there, total 36 men were there। हमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, राइट। लेट्स ऐड दिस 36 and 50, you get the answer as 86। तो उस पर्टिकुलर विलेज में कितने विलेजर्स है, कितने पीपल है, there were 86 people in the village। Okay, very simple question, just based on the simple number manipulation। Okay, now let's continue for the next question। Yeah,
दिस इज द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन एजेस। अभी देखो इसको कैसे कंफ्यूज किया है। Isha's father was 34 years of age when she was born. Shashank, in bracket, younger brother of Isha, is 13 years old and he is very proud that the fact that he is as tall as Isha, even though he is 3 years younger than her. Isha's mother, who is shorter than Isha, was only 29 when Shashank was born. अब शशांक कौन है? ऊपर दिया है ईशा का यंगर ब्रदर। What is the sum of ages of Isha's parents now? इतना सब डेटा उन्होंने दिया है और एंड में पूछा है कि ईशा के पेरेंट्स का सम क्या है, ईशा के पेरेंट के एजेस का सम क्या है। हाइट से कुछ लेना देना है क्या हमें इस क्वेश्चन में? नहीं। सो प्लीज इग्नोर दैट पार्ट, इट इज जस्ट टू वेस्ट योर टाइम, जस्ट टू कंफ्यूज यू। हाइट से हमें कुछ भी नहीं करना है। नाउ हमारे पास कौन कौन है? ईशा एंड शशांक भाई बहन है, ठीक है। अब इनके दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? ईशा इज एल्डर टू शशांक बिकॉज ब्रैकेट में क्या दिया है? यंगर ब्रदर ऑफ ईशा। शशांक इज यंगर ब्रदर ऑफ ईशा हु इज 13 इयर्स ओल्ड। करंटली उनका एज कितना है? शशांक का एज है 13 इयर्स एंड ही इज वेरी प्राउड दैट ही इज एज टॉल एज ईशा। हमें इस फैक्ट से कोई लेना देना नहीं, स्ट्रेट अवे इग्नोर दिस। इवन दो ही इज 3 years younger than her, उसका भाई उससे 3 साल छोटा है। तो कैन वी से दिस 13 मस्ट बी इक्वल टू e minus 3, राइट? तो ईशा का एज कितना होगा? जस्ट इस 13 में 3 ऐड करो, ईशा's एज विल बी 16। देखो इनके दोनों के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए एंड शशांक शुड बी यंगर, दैट्स इट। ईशा का एज मिला, शशांक का एज मिला, पर हमें ईशा और शशांक का चाहिए क्या? नहीं, उनके पेरेंट्स का चाहिए। तो उसके लिए क्या हिंट दी है? पहला स्टेटमेंट पढ़ो। ईशा's father was 34 years of age when she was born। अब जब ईशा का बर्थ हुआ रहेगा वो तो 0 एजेस की, उसका एज क्या रहेगा? उस वक्त 0 रहेगा। और जब उसका बर्थ हुआ हिज फादर वाज 34 इयर्स ओल्ड, राइट? प्रेजेंटली ईशा का एज 16 इयर्स है, तो ईशा का बर्थ कब हुआ रहेगा? 16 इयर्स पहले हुआ रहेगा। अब देखो जैसे ईशा का एज बढ़ रहा है, इट इज क्वाइट ऑब्वियस उसके फादर का भी एज वैसे ही बढ़ेगा। सो कैन वी से प्रेजेंट एज ऑफ हर फादर इज नथिंग बट उनका उस वक्त वाला एज जब ईशा का बर्थ हुआ था प्लस ईशा's करंट एज, राइट? जैसे ईशा भी 16 साल की है, फादर उस वक्त 34 इयर्स के थे जब ईशा का एज 0 था, ईशा का बर्थ हुआ था। सो 16 ईयर से फादर का भी एज बड़ा होगा, सो फादर्स प्रेजेंट एज इज नथिंग बट 50, राइट? एंड व्हाट अबाउट मदर? देखो मदर के लिए यहाँ पे कंडीशन दिया है। ईशा's मदर हु इज शॉर्टर देन ईशा was only 29 जब शशांक का बर्थ हुआ था। शशांक इज ईशा's ब्रदर। शशांक आज 13 साल का है। जब शशांक का बर्थ हुआ his mother was 29 years old, तो मदर का प्रेजेंट एज क्या रहेगा? जैसे जैसे शशांक का एज बढ़ रहा है वैसे वैसे मदर का भी एज बढ़ रहा है, तो स्ट्रेट अवे हमें उसका एज उसमें ऐड करना पड़ेगा। मदर्स एज वाज 29 एंड शशांक का एज कितना? 13। लेट्स ऐड दिस, द समेशन इज नथिंग बट 42। फादर का मिल गया, मदर का मिल गया, लेट्स डू द एडिशन। 50 प्लस 42 इज नथिंग बट 92। सो ईशा के पेरेंट का प्रेजेंट एजेस का सम क्या है? 92 है। हाउ सिंपल इट इज। देखो मैंने आपको पहले ही कहा था वो जो उन्होंने हाइट का दिया है ना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इट इज जस्ट टू वेस्ट योर टाइम, इट इज जस्ट टू कंफ्यूज यू। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड इन सच अ थिंग्स, whereas the question is very simple. Now let's move towards next question. Look here, what is given over here? A sum of rupees 2387 is divided into 3 parts in such a way that 1/5 of first part, half of the second part and 1/4 of the third part are equal. Find the sum of 5 times first part, 3 times second part and 4 times third part, and of course हमें किसमें फाइंड करना है? रुपीस में ही फाइंड करना है, ठीक है। What was the total amount share? 2387 कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स में। हमें वो पार्ट्स पता है क्या? नहीं पता है। सो लेट्स लेबल द पार्ट्स एज ए, बी एंड सी। कर लिया पार्ट्स को लेबल, 3 पार्ट्स ए, बी, सी, तीनों पार्ट्स अलग अलग है। अब जब डिवीजन किया है तो कैसे किया है? They divided in such a way that 1/5 of first part,
हाफ ऑफ सेकेंड पार्ट एंड 1/4 ऑफ थर्ड पार्ट। ये सभी पार्ट इक्वल है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट का 1/5 लीजिए, सेकेंड पार्ट का 1/4 लीजिए, एंड सॉरी सेकेंड पार्ट का हाफ लेना है एंड थर्ड पार्ट का क्या लेना है, 1/4 लेना है। अब जब हम इसका 1/5 ले रहे हैं फर्स्ट पार्ट का, सेकेंड का हाफ ले रहे हैं एंड थर्ड का 1/4 ले रहे हैं, ऑल दिस पार्ट्स आर इक्वल, पर क्या हमें दिया है वो कितना अमाउंट है कि 1/5 ऑफ ए इज दिस मच अमाउंट या 1/4 ऑफ सी इज दिस मच अमाउंट, नहीं दिया है। तो हमें अगेन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल अज्यूम करना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम दिस वेरिएबल एज के। Okay, 1/5 of A is K, half of B is K, and 1/4 of C is also K. So what will be the value of A? A को हमें क्या करना पड़ेगा, A का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस 5 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। So A will be 5K, B will be 2K, and C will be 4K. So here we get a ratio in which A, B, and C were distributed. That is 5:2:4, and where K is nothing but a common factor. राइट। अब टोटल अमाउंट इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो अगर हम तीनों के शेयर को ऐड करेंगे मुझे क्या मिलना चाहिए, मेरा ओरिजिनल अमाउंट मिलना चाहिए, दैट इज नथिंग बट 2387। सो इफ वी ऐड 5K 2K एंड 4K वी मस्ट गेट समेशन एज 2387। चलिए 5 + 2 7, 7 and 4 11, 11K is equal to 2387। so what's the value of K? Value of K is 2387 by 11। let's divide this। 11 2s are 22, 1 sorry, yeah, 1 remaining, 11 1s are 11, 7 remaining, 11 7s are 77। तो k का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया 270। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, लेट मी इरेज दिस पार्ट, या आई फिर मैं सिर्फ इतना इरेज करती हूँ। या हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, लास्ट स्टेटमेंट जरा पढ़ो यहाँ से। Find the sum of 5 times first part, 3 times second part, and 4 times third part. If you read the condition carefully, कहीं पे भी हमें A, B या C इनका वैल्यू नहीं पूछा है, हमें किसका वैल्यू पूछा है, look here, 5 times of A, 3 times of B, and 4 times of D, 4 times of C. I request everyone, please don't calculate value of A, B, and C. डोंट वेस्ट योर टाइम। पर आप बोलोगे मैम वो कैलकुलेट किए बिना आगे कैसे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। 5 टाइम्स ऑफ ए, ए का वैल्यू कितना है 5K, चलो पुट करो 5 टाइम्स ऑफ 5K। 3 टाइम्स ऑफ बी, बी का वैल्यू कितना है 2K, सो 3 इंटू 2K। 4 टाइम्स ऑफ सी, सी का वैल्यू कितना है 4K, 4 टाइम्स ऑफ 4K। पहले इसे सिंप्लीफाई करो, आखिर में हम k से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लीज एक ही बार मल्टीप्लीकेशन करना है, वी आर गोइंग टू अवॉइड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। 5 into 5 25K, plus 3 into 2 6K, plus 4 into 4 16K। 25 plus 6 plus 16, you get the summation as 47K। so what is the value of 5A plus 3B plus 4C? it is 47K। पर हमें निकालना किसमें है, रुपीज में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 47 को 217 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन, 47 into 217। now I am going to show how to multiply this quickly। we will write this 217 as 200 plus 10 plus 7, and we will multiply all these numbers by 47। चलो 47 into 2, 2 sevens are 40, carry 1, 2 fours are 8 and 1 9, 9400 plus 47 into 10 कितना आता है 470, and 47 into 7, 7 sevens are 49, carry 4, 7 fours are 28 and 4 28, and now we'll add this is 9, 7 and 8 15, carry 1, 4 and 4 8 and 2 10, 10 and 1 11, carry 1, 9 and 1 10। so कितना आता है 10159। what is the summation? the summation is 10159। 47 कुछ गलत हुआ है क्या मेरा, 7 sevens are 49, carry 4, 7 fours are 28 and 4, I am so sorry, यहाँ पे समेशन जो है 32 है, I am so sorry। मैंने सिर्फ क्या किया, सॉरी मैंने सिर्फ 28 लिखा, सो देयर शुड बी 32। तो यहाँ पे हमारा समेशन भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा,
Okay, don't worry, we will solve it again. Yeah. So yeah, 9 is a 9, 7 and 2 9, 4 and 4 8 and 3 11. Now carry 1, ये carry आता ही नहीं है यहाँ पे, and 9 and 1 10. Yeah, that's it. And this is the final answer. What is the summation of 5 times of A, 3 times of B and 4 times of C? The answer is 10199. Please, 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 I request everyone again and again, don't calculate this shares, please. उन्होंने नहीं पूछा है तो कैलकुलेट नहीं करना है, स्ट्रेट वे हमें 5 टाइम्स ऑफ ए, 3 टाइम्स ऑफ बी, 4 टाइम्स ऑफ सी पूछा है, तो हम पहले उसी से मैनिपुलेट करेंगे एंड वही आंसर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज देयर ऑन नेक्स्ट स्लाइड. लेट्स चेक. Oh, there is a thank you on next slide. It means we are done with today's session. Okay, so now, thank you so much everyone for joining the session. And as this is the first session, so I hope you people have enjoyed the session. Now, please regularly for next 10 days log in with on the same time, that is at 6 p.m., where we are going to conduct some topics on aptitude. And I hope this will help you a lot in your TCS NQT preparation. Thank you so much once again everyone for joining the session and listening to us patiently. For more information, you can visit our website, that is www.profoundedutech.com. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much everyone. Do take very good care of yourself and good night. Bye bye.